So hi guys, my name is Rahul, and as you must have read about me on the bio. So basically I'll just give you a brief introduction what all I have done and what all stuff I do. So I'm currently working for Samved Trust, and I work there as a pranayam expert and as a health expert via Samved Trust. So basically I'll give you a brief introduction about Samved Trust. So Samved Trust has helped a lot of prominent people in the Bollywood industry, from the cricket industry, to help them cope up with various diseases as well as mental. It's something related to pranayam and more of mental health. So we have served IIT Bombay, Indian Institute of Technology. Then we have also worked for Tata Memorial Cancer Hospital. Then we have also worked with Mumbai Police. We have worked for in the Ministry of Commerce. So we have done quite a number of work for the government institutes, and I really hope that you get benefited with this. So if you want, we can just start with the basic pranayam first, and then we can move on to personal Q&A. So I would want you guys, so you know what we'll start practicing this pranayam first. We will be watching it, but we will be discussing more stuff about health and everything, but let's just start and get a gist of what exactly are we going to do. Unless and until you don't understand it, you don't practice it, you won't be able to understand that what are we doing actually. So I would want you guys to sit down on a mat, on a cloth, or anything. Preferably bed and sofas are not preferred, but if you're not able to sit down, you can sit on a chair, on a sofa, on anything. Just put something beneath your legs, beneath your feet, I mean to say. Secondly, the people who are able to sit down can settle down, and they can sit. Obviously they have to use a mat before that as well. Okay, so just be calm, keep your eyes closed, be there for 15 seconds, count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So before starting, what we always do is we start with Guru Stuti. Without Guru, in excelling in such scenarios is very difficult. So since I've observed that a lot of people might not be that would not want to me to speak in Hindi, would not want to understand in Hindi, so I would just switch to Hindi. So बहुत सारे लोग हम लोग देखते होंगे कि हम लोग गुरु को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता है. जैसे कि पंजाबी लोग अगर होंगे तो गुरु जी को, उनके जो सदगुरु है, उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है. ये गुरु कहते हैं कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता. तो हम भी जब कोई विद्या करते हैं तो सबसे पहले गुरु स्तुति करना बहुत ही ज़रूरी है, हम सबको करनी चाहिए. आप किसी भी गुरु में बिलीव करते हैं, किसी भी भगवान में बिलीव करते हैं, तो आप उनका स्मरण कर सकते हैं. सो विल स्टार्ट विद गुरु स्तुति फर्स्ट, एंड देन विल डू वन प्रणाम, एंड देन विल स्टार्ट विद Q&A सेशन. ओके, सो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्य, मोक्ष मूलं गुरु कृपा. जय गुरु शिव गुरु आदि गुरु हरि गुरु हरं गुरु चिन्मय गुरु चिदमय गुरु. जय गुरुदेव आनंद आनंद, जय गुरुदेव आनंद आनंद, जय गुरुदेव आनंद आनंद, जय गुरुदेव. So let's start with Nadi Shodham Pranayam. First we'll practically do Nadi Shodham Pranayam, then I'll explain you what are the benefits of Nadi Shodham Pranayam. So it's a very simple process. You have to count 21 times in a single go. While doing it, the people who have high blood pressure, I repeat, the people who have high BP, will keep the pace little slower, little low. People who have high BP, the people who have high BP will keep it little slower, little lower, and people who have low BP can keep the pace little higher. People who are very healthy, don't have any issue, can keep it normal or keep it high. So I'll do it thrice. So firstly I'll do it for the high pitch. So सबसे पहले हम लोग करेंगे हाई पिच के लिए कि कैसे करना चाहिए. Deep inhale and deep exhale, right? Deep inhale and deep exhale. That way you have to do it 21 times. I did it once, you have to do it 21 times. अब बात आती है उनके लिए जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है. तो आपकी पेस कैसी होगी, आपकी स्पीड क्या होगी.
जिनको लो बीपी है उनकी स्पीड क्या होगी? तो आप ये 21 टाइम्स करके देखिएगा। थोड़ा सा सर घूमेगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने ऐसी एक्टिविटी कभी पहले की नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये चीज़ शरीर के लिए ये चीज़ नहीं है। तो थोड़ा बहुत शरीर घुमा देता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, सो यू कैन डू इट। वंस यू आर डन विद 21, विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 seconds, 5-15 seconds, and then we'll again start with it. So meantime I'll explain you what are the benefits. People who have veins problem, people who have vertigo, people who have spondylitis, people who have back problem, I repeat, people who have back problem, okay, something which is related to your neck and to your back, it is going to be very beneficial for them. Then this pranayam is also related to pituitary gland. The pituitary gland is also called as the king of all glands. A lot of secretion happens to that. So if anyone has little bit of, feel little anxious, feel little depressed, feel little sad, okay, they can practice this pranayam on daily basis. You can do it early in the morning or late in the evening. Try doing it early in the morning and avoid from 12 to 4, in between 12 to 4, okay. So also I would recommend your stomach should be 3 hours empty before doing all these pranayams on regular basis. If anyone wants to know any other thing, you can just put in your queries, so even I would able to understand what exactly are you guys up to. Also lot of people who wants to know just about the normal diet. तो हम लोग अक्सर बहुत सारे डाइट करते हैं कि यहाँ पे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। अगर मैं आपको एक बेसिक रियलिटी बताऊँ तो अगर आप मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, अवॉइड ईटिंग वाटरमेलन या कोई भी फ्रेश फ्रूट खाते हैं, तो आप देखोगे इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। आपको मॉर्निंग में आपके पेट को वो पूरा साफ़ कर देता है। तो ये आपकी थोड़ी सी हैवी चीज़ें जो सबसे पहले मॉर्निंग में खानी चाहिए। लेकिन उसके भी पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं, सुबह उठ के आप 2 ग्लास नॉर्मल वाटर पीजिएगा। अगर ठंडी का समय तो हल्का सा गर्म पानी पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल वाटर पीने का ट्राई कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग। अगर आप 2 ग्लास पानी पीते हो, आप मान लीजिएगा कि आपका पेट जो है वो सबसे पहले साफ़ होता है। देखिए आप, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, लॉट ऑफ डिजीजेस हैपन थ्रू 2 things, राइट। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर स्टमक, डिजीजेस स्टार्ट थ्रू दैट। Secondly, the functioning of your lungs. Oxygen has played a very important role in this pandemic as well. If you see, I have talked to a lot of doctors. They said, it attracts. It's not a fact. Okay, it's not like a hidden fact. We all know that people felt breathless and basically fibroids form in your lungs and everything, right? So if your lungs are very strong, enough, immunity is very high, it's very strong, then you won't attract any sort of disease. It is not just related to coronavirus या फिर कोई एक बीमारी के लिए। आप कोई भी बीमारी को उठा के ले लीजिए, अगर आपकी इम्यूनिटी, अगर आपका मनोबल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन फाइट एनी डिजीज़, यू कैन गेट थ्रू एनी डिजीज़। फर्स्टली यू वॉन्ट अट्रैक्ट, सेकेंडली इफ़ यू अट्रैक्ट दो डिजीजेस, यू विल हैव दैट विल पावर टू फेस इट, एंड दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स कैसे नहीं आएगी? अगर आप आए हो जीवन में तो रोड तो हमेशा सीधा होगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तब उसमें मज़ा आएगा। मान लीजिए आप अगर कोई कार में या कोई ट्रैवल कर रहे हो और रोड पूरा का पूरा सीधा ही है, तो ट्रैवलिंग इन अ सिंगल रोड स्टेट, क्या उसमें आपको मज़ा आएगा? वी वोंट बी फाइन, इट वोंट बी हेल्दी फॉर अस एज वेल, कोई मज़ा ही नहीं आएगा उसमें। तो हम लोगों का क्या है कि हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट होता है, थोड़ा राइट होता है, तो ज़िंदगी में रोमांच भी आता है। तो उसी तरह अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते तो वो आपको थकाने के लिए नहीं आते, आपको मायूस करने के लिए नहीं आते, तो आते हैं आपको कुछ सिखाने के जाने के लिए। वो आते हैं ताकि आप और बेटर कर सको। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ हो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, तो वो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। देखिए आज मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, वो इन डेप्थ जा रहा है हर डिजीज़ में। पर अगर आप देखोगे, डिजीज़ेज जो है वो एक ऑर्गन से निकलती है। मान लीजिए आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोई लंग्स का प्रॉब्लम हो, पेट का प्रॉब्लम हो, तो एक निकालती है। दिमाग की, अगर आप कुछ भी कर लीजिए टर्म्स को, डिप्रेशन डाल दीजिए, एनजाइटी डाल दीजिए, कोई भी टर्म्स को डाल दीजिए, लेकिन है तो एक आखिर में टेंशन ही वो। तो टेंशन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले हमारा जो इंस्टीट्यूट था, वी हैड अ फैमिली इंस्टीट्यूट, वी हैव मैरिज इंस्टीट्यूट, विच वॉज वेरी वेरी फ्लरिश्ड, वी आर वेरी नाइस। तो हम लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे, हमारा कोऑर्डिनेशन
आपस में बहुत अच्छे से होता था, लेकिन आज वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। तो हम लोगों को हमेशा हमारी फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट करना चाहिए, जो हमारे बहुत क्लोज एंड नियर एंड डियर वंस हैं उनसे हमेशा हमें बातें करते रहनी चाहिए। उससे हमारा जो क्या है सोशल लिंक जो है वो मेंटेन रहता है। सेकेंडली, अगर आप आसन करते हैं, बेसिक आसन ताड़ासन है, सेकेंडली आपका पवन मुक्तासन है, ये सब आसन करने के बाद मेजरली अगर आप प्राणायाम करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। आपके हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। मैं आपको एक बहुत लॉजिकल चीज़ बताता हूँ कि आप सांस लेते हैं, जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे भले गिरते पड़ते हैं, सबते उठते बैठते हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और उनका सिस्टम जो है वो बहुत पीक पर होता है। उसके बाद जैसे हम लोग 30 क्रॉस करते हैं, हम लोग मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क प्रेशर, खान पान, रहन सहन, सब कुछ हमारा बिगड़ जाता है। उसी के कारण हमारे प्रॉब्लम जो है वो अट्रैक्ट होती है और वहीं से शुरू होती है। तो क्यों ना हम उस पर थोड़ा सा फोकस कर ले। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में आप 24 घंटे नहीं निकाल सकते, लेकिन 24 घंटे में से 24 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो आप उस 24 मिनट में कुछ प्राणायाम कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो वो एक प्राणायाम हो चुका है आपका एक। फिर आपके जो बाकी के बेसिक प्राणायाम है, जैसे कि आप अनुलोम विलोम है, कोई भी बेसिक प्राणायाम आप उनको धारण कर लीजिए अपने जीवन में, तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। इसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं जो है शवासन। शवासन को बहुत अंडररेट किया गया है, बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, जबकि शवासन के पावर्स जो है वो मेडिटेशन से इक्विवेलेंट है। अब मेडिटेशन के ऊपर आते हैं, बहुत से लोगों को मेडिटेशन भी करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन भी सीखना होगा। सो आई टेल यू द मेडिटेशन वेरी बेसिक थिंग। आई टेल यू अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन में देखिए, आपको कोई भी इंसान बता नहीं सकता कि आपको करना क्या है। इसमें कोई आपको मेडिटेशन में उतार नहीं सकता, आपको खुद ही उतरना होगा। घोड़े को तालाब तक लेके जा सकता है इंसान, लेकिन पानी पीना जो है वो घोड़े को अपने आप ही करना होगा। आप उसके लिए पी नहीं सकते। मैं या कोई भी हो आपको बता नहीं सकता, आपको मेडिटेशन खुद ही करना है। हालांकि आप अगर आपको शुरुआत करना ही है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करने के लिए जब आप बैठोगे तो आप ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट हो। मानता हूँ मैं कि अभी बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं इनिशियली, बट इवेंचुअली तो स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट एंड इंडिपेंडेंट। सेकेंडली, आप बहुत कामली बैठिएगा और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया 21 टाइम्स इनहेल एंड एक्सेल, वेरी डीपली इनहेल, वेरी डीपली एक्सेल। वंस यू आर डन विथ इट, यू कैन स्टार्ट सिटिंग लिटिल काम। देखिए, ये एक चीज़ जो है वो एक दिन में होगी नहीं, ये एक साल में भी होगी नहीं, शायद से 2 महीने में भी हो सकती है। तो आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना होगा। आप जितना इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप बैठ जाइए, 15 मिनट्स के लिए स्टार्टिंग में शुरुआत कीजिए। आप 5 मिनट्स के लिए शुरुआत कीजिए, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 25 कीजिए। आप देखते जाओगे कि आप अपने आप उस मेडिटेशन में ढलते जाओगे। सिर्फ आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रहे, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सपोर्ट लेके कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको मेडिटेशन करते समय थोड़ा इचीनेस हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे करोगे नहीं, आप उसको सहन कीजिए। इसमें भी एक अलग मज़ा है। आप करोगे तो आपको बहुत रोमांस लगेगा उसमें, अपने आप दिस थिंग्स विल स्टार्ट बिल्डिंग अप, यू विल एन्जॉय ऑल दिस प्रोसेसेस। सो वंस यू आर डन विद दैट, this is your meditation part. I guess it is already been done. Now I'll tell you one more pranayam. If you guys have, in the end I'll give you a recap. Those who have missed all these pranayams, I'll give you a recap. But now we'll move on to the next pranayam. It is called Surya Bhed Pranayam. People who have skin diseases, people who have skin problems, see, you have seen there is a certain amount of aura on a some person who is from spiritual background, who does yoga and everything. I'm talking about people who are into yoga industry. Spiritual background is totally dependent on the people who are practicing yoga or practicing pranayam, asana and everything. I'm not talking about other people. I'm focusing on pranayam and everything. You see that there is certain aura on their face. उनके फेस पे एक अलग सी चमक आती है। आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लीजिए, वो चमक नहीं आ जाती हम लोग में, क्योंकि वो एक एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है, वो मेडिटेशन से आती है। तो जो सूर्य भेद प्राणायाम है, हमारी बहुत सारे फीमेल्स होती है, उनको अच्छी स्किन चाहिए होती है। दे वॉन्ट द स्किन टू बी लुक फ्लॉलेस इवन आफ्टर 30, 35, 40। तो आप क्या कर सकते हो? आप सूर्य भेद प्राणायाम कर सकते हो। आप सूर्य भेद प्राणायाम के कुछ लिमिटेशंस है, तो आपको मैं बहुत बेसिक प्राणायाम बता रहा हूँ। सूर्य भेद का जो कट डाउन वर्जन है वो बता रहा हूँ। यू हैव टू बी कम्प्लीटली स्ट्रेट, ओके? यू कैन कीप योर स्पाइनल कॉर्ड कम्प्लीटली स्ट्रेट, कीप योर आइज क्लोज, यू विल ऑलवेज यूज दिस राइट हैंड, ओके? These 2 fingers and this thumb, okay? These 2 fingers placed on the left side
and this is on the right side. So basically you have to inhale from the right side and exhale from the left side. But once you inhale, you have to hold your breath for 10 seconds. For example, like this. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Once you're done holding, then exhale. अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसे 2 बार दोहराया है. आप इसको इनिशियली 6 बार फिर 12 बार कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 24 के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि आप अगर इसमें कोई गलतियाँ कर सकते हैं तो. दूसरी बात, आप जो है इसमें बहुत कॉशियस रहिएगा. बी लिटिल कॉशियस वाइल डूइंग इट. आप इसमें गलतियाँ जो है वो बहुत मिनिमम रखिएगा. अब म्यूज़िक लगा के आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि म्यूज़िक लगा के जो लोग करते हैं, आप बहुत सीरियस काम कर रहे हो, तो आपको इन्जॉय करना है. आपको इन्जॉय करना है इंडिपेंडेंट रह के, डिपेंडेंट रह के इन्जॉय नहीं करना है आपको. तो यू अवॉइड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, यू डू इट इंडिपेंडेंटली. ओके, so once you are done with Surya Ved, which is the basic version of Surya Ved, we'll switch to Chandra Ved. Again, I'm repeating, these are all the basic pranayam of the actual pranayam, but it is going to be beneficial. It is according to the beginners. So now we will repeat the process from the left side. Again, the thumb will be on the left side and inhale from the left side. Hold it for 10 seconds and then exhale from the right side. I did it twice. आप इसको 12 बार, जितना आपने सूर्य वेद किया उतना बार आप, उतनी ही बार आप चंद्र वेद कीजिए. This way you will complete. We have completed 3 pranayams. We have covered 3 pranayams. We have completed the consultation for the skin problems, skin disorders. We have also completed the consultation for the stomach problem. अब आते हैं हम लोग डे टू डे हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है उनके ऊपर. तो हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज जो आती है वो है आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज़. ब्लड प्रेशर जो है सूर्य वेद चंद्र वेद अगर आप प्रॉपर करते हो, एंड आई एम रिपीटिंग वन मोर थिंग, इफ़ यू आर डूइंग नाड़ी शोधन, मेक श्योर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप नाड़ी शोधन के टाइम पे पेस लो रखेंगे. आप धीरे से सांस लेंगे, आपकी सांस आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन स्पीड आपका कम रहेगा. अगर आपका लो बीपी है तो आपका स्पीड थोड़ा सा हाई रखिएगा. ऑलराइट, ये सारे प्राणायाम आप मेंटेन कर सकते हैं. तो हम लोगों ने बीपी के लिए क्या करना है, आपको सूर्य वेद चंद्र वेद जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आपका जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो आपको वेन्स की प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल होगा. पीपल हु हैव बैक प्रॉब्लम, पीपल हु हैव नेक प्रॉब्लम, पीपल हु हैव स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, it is going to be beneficial for them. People who want to know more about meditation, want to explore meditation, Nadi Shodhan is the one pranayam for you. Then apart from that, it is related to pituitary gland, people who have hormone and imbalance problem. Again, this pranayam is going to be very beneficial. For diabetes, I'm going to teach you one pranayam, but at the same time, I'll share you one very important tip. See, the most underrated, the most underestimated leaf, herbal, which is very useful. कहते हैं कि 100 हकीम का और एक नीम का. नीम को अगर आप अपने जीवन में डालते हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत. आरती जी ने जैसे कि मेंशन किया कि उन्हें डायबिटीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आप इस्तेमाल कीजिएगा नीम. 4 पत्ते इस्तेमाल कीजिएगा. अगर कोई यंग मेल है तो आप उसको रोज़ सेवन मत कीजिए, एक दिन छोड़कर कीजिएगा और फिर 15 डेज़ का गैप लीजिएगा. फीमेल्स लोग नॉर्मली ले सकते हैं डायबिटीज़ वाले जो है, फिर भी मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि 15 डेज़ के बाद आप एक गैप रखिएगा नॉर्मल. नीम. सेकेंडली मैं अभी आपको जो प्राणायाम बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा क्रूशल प्राणायाम है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्राणायाम और इसको बहुत कॉशियसली कीजिएगा, स्पेशली सारे ही लोग. ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बहुत गुणकारी है. और मैं आपको एक किस्से बताता हूँ कुछ. व्हेन आई वाज अ मास मीडिया स्टूडेंट, मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में कोई ये नहीं था कि मुझे ये ज्वाइन करना, मुझे योगा करना है ज़िंदगी में, मुझे लोगों को. बट जब मैंने ये प्राणायाम का, योग गुरु शंभू शरण जी और हमारे जो गुरुदेव है श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी, उनकी ये विद्या है सबीज विद्या, सगर्भ और अगर्भ. जब मैंने इसका रिजल्ट देखा, द रिजल्ट वॉज फिनोमिनल. आई एम टेलिंग यू गाइस, द रिजल्ट वॉज वेरी फिनोमिनल एंड आई कैन गारंटी यू दिस. You can I'll just write down my number. You can contact me if you have any query. I guarantee you, if you don't get result, I'll leave this profession. And I'm saying this on live. If you don't get result,
I'll leave this profession right away on this very same day. That much confidence I have on this pranayams and on my working and on this all teachings. So मोटापे के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए. मोटापे के लिए आपको डाइट भी बताता हूँ मैं, आप क्या चीज़ों का ध्यान रखिएगा. तो आते हैं हम लोग डायबिटीज़ के ऊपर. तो आप प्लावनी प्राणायाम कीजिएगा. प्लावनी प्राणायाम में आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ. हाँ, बिना 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 इसके भी आप खा सकते हैं नीम, बिना डायबिटीज़ के भी खा सकते हैं. नीम से आपकी स्किन की डिसऑर्डर जो है वो भी दूर होगी. नीम बहुत गुणकारी है उसमें. आई शेयर माई नंबर एट द एंड ऑफ इट. आरती जी, मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ इसके एंड में. तो पहले हम लोग प्लावनी प्राणायाम सीख लेते कि प्लावनी प्राणायाम करना कैसे है. तो प्लावनी प्राणायाम में आपको सांस लेके रोकनी है. हमने पिरामिड देखा हुआ है, राइट. तो पिरामिड कैसा होता है, बड़े से छोटा छोटा होते जाता है, यानी बॉटम उसका बहुत ब्रॉड होता है, फिर एक नोक बन जाती है टॉप पर, राइट. तो हम लोग वैसे ही सांस लेंगे. सांस लेके होल्ड करना है. होल्ड करते करते आपको एक्सट्रीम कॉर्नर तक पहुंचना है. ऑलराइट, सी. Once you reach the extreme corner, you have to hold it and swallow your saliva. Hold it for 50 seconds. And then exhale. मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा. डेली आप 4 से 5 लीव खा सकते हैं रागिनी जी. आपको और एक चीज़ मैं प्लावनी प्राणायाम के बताऊंगा. देखिए, प्लावनी प्राणायाम जो है ये सगर्भ और अगर्भ विद्या में आती है. ये चीज़ जो है आपको बहुत कॉशियसली होकर करनी पड़ेगी. ये है आपके नॉर्मल प्राणायाम्स नहीं है, इसमें कुंभक लग रहा है. ये अगर आप इसको सही से नहीं करते हो, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसे सही से नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ मत कीजिएगा. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सही से नहीं कर रहे हो, अगर आप गलत करें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है. तो आप अगर नहीं समझे हो ठीक से तो प्लीज़ आप इसको एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा. अगर आपको पूरी तरह समझा है तभी आप कीजिएगा. प्लावनी प्राणायाम खास करके अगर आपको नहीं समझा है तो आप प्लीज़ मत कीजिएगा. अदरवाइज़ जो आप सूर्य भेद और नाड़ी शोधन बताएं वो आप कर सकते हैं 3 घंटा पेट खाली रख के. ठीक है, तो आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्लावनी प्राणायाम करना कैसे पूरी तरह आप देख लीजिएगा. होल्ड इट, यू हैव टू स्वॉलो योर सलाइवा. आपको जो आपकी थूक है उसको निगल जाना है. जब तक आप शब्दानुसार रोक के रखिएगा. एंड देन एक्सेल. ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा. अब हम लोग पढ़ते हैं मोटापे के ऊपर. तो देखिए, मोटापा जो होता है हम लोग देखिए ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है सबसे मेजरली. सेकेंडली होता है, देखिए मोटापा जो है ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है, यानी कि आप बैठे बैठे रहते हैं, उसके वजह से आपकी एक्टिविटीज़ कम होती है, आपका चलना फिरना कम होता है, उसके वजह से होता है. सेकेंडली मोटापा जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है. थायराइड है, पिकॉर्ड है, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जिन्होंने महिमा जी ने, जिन्हें मोटापा, महिमा शुक्ला जी ने आपको मोटापा आपको छुटकारा पाना है, उससे ज़्यादा आप उससे तो आप मोटापा कम होगा ही आपका, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपके ऑर्गन्स ये एज में हेल्दी हो. आप उन पे फोकस करोगे तो आप देखोगे कि यंग एज में सारे लोग पतले होते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल उतनी हाई होती है, हमारे लंग की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है. तो मोटापे के लिए, सारे ऑर्गन्स के लिए आप प्राणायाम जो है आप रेगुलरली कीजिएगा, रोज़ कीजिएगा. आप प्राणायाम के कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर आप प्रॉपरली करते हो. 3 सेट नाड़ी शोधन कीजिए, 12 सेट सूर्य भेद, 12 सेट चंद्र भेद, मेडिटेशन फॉर 15 मिनट्स. अगर आपको इसके ऊपर भी बढ़ना है तो मेरे क्लासेस भी होते हैं. वी टेक ऑनलाइन क्लासेस, वी प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन, वी ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनल क्लासेस एंड एवरीथिंग. यू कैन जॉइन दैट एज वेल अगर आपको इसमें और एक्सप्लोर करना है तो मोटापे के लिए. और किसी ने कुछ सवाल पूछा था डायबिटीज़ के लिए. हाँ, डायबिटीज़ के लिए आप बिना, रागिनी जी आप खा सकते हैं बिना, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो आपको ये आगे जाके कोई डिजीज़ अट्रैक्ट ना हो उसके लिए बहुत काम आएगी. और आप अपने लिए नहीं, आप पूरे फैमिली मेम्बर्स को भी करा सकते हैं. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. अगर आपको कोई क्वेरीज़ है अभी तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ. मैंने अपना नंबर पोस्ट कर दिया है, आप इसमें से अब मेरा नंबर ले सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, आपको कोई ज्वाइन करना है. और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ज्वाइन ही करना है, आप मुझसे नॉर्मली भी बात कर सकते हैं. कांटेक्ट करके अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट.
यू कैन जस्ट टेक डाउन माई नंबर, दैट्स माई नंबर 8169960186। बीमारी के कारण पड़े रहना, बीमारी के, अगर आपको बीमारी के कारण पड़े रहता होगा बेड के ऊपर, तो अब मान लीजिए कि देखिए प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं चलना फिरना भी नहीं होता। अगर आप एक ही बेड पर बैठे हुए हैं तब भी आप कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं आपको एग्जैक्टली किस बीमारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं और अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो लोग, आप सब ये समवेट ट्रस्ट के ऑफिशियल इस पे हैंडल पर जा सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने अपना नंबर वहाँ पे मेंशन किया है 8169960186। विद्या जी, हम लोग वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से रिकैप कराऊंगा प्राणायाम से रिलेटेड, तो अब उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो महिमा जी, आपने जैसे बताया कि बीमारी के कारण आपको बैठे रहना पड़ता है, और उसके कारण आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आप बैठे रहते हैं तो एक बीमारी से 2 बीमारी, 3 बीमारी से 4 बीमारी वो पीछे पीछे आती रहती है। हमारा साइकोलॉजिकली, हमारे जो मानसिकता है वो भी उससे अफेक्ट होती है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊंगा, आप ये काम कर सकते हो उसमें। आप जब बेड पे हो, आप सुबह उठते हो, अगर आप कोई भी इष्ट देव में बिलीव करते हो, आप कोई भी अपने माता पिता में बिलीव करते हो, आप कोई भी चीज़ में बिलीव करते हो, आप अपने बेड पर बैठिएगा, आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन करना है मतलब क्या करना है, जैसे आपको आंखें बंद करके बैठिएगा और आप उनका नाम स्मरण कीजिएगा। ऑलराइट, आप जब स्मरण करोगे तो आपको थोड़ा सा बल मिलेगा। उसके साथ ही साथ आप बेसिक जो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो मैंने अभी सूर्यभेद और चंद्रभेद प्राणायाम बताया आपको, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलेगी। महिमा जी, वैशाली राउत जी भी आई हुई है। अगर आपको कोई कुछ पूछना है विद्या जी, विद्या जी, आई एम रियली थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मेंशन किया दैट यू लाइक माय स्पीच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विभूति मेहता, शिल्पा मिश्रा जी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आई होप इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। आई रियली होप कि ये जो आप सुन रहे हैं आप इसको अपने जीवन में उतारोगे। आपको अगर थायराइड और डायबिटीज़ है तो थायराइड के लिए मैं आपको और एक प्राणायाम बता देता हूँ थायराइड के लिए। और थायराइड के साथ साथ संध्या जी आप ये भी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्यभेद चंद्रभेद प्राणायाम। आपको और एक प्राणायाम बता दूंगा मैं, आप उसको सीख लीजिएगा, तो वो करने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। डायबिटीज़ के लिए आप ऑब्वियसली आप नीम खा सकते हैं, तो नीम खाइएगा। इनिशियली आप पाँच नीम के ऊपर मत जाइएगा और थोड़े टाइम के बाद गैप दीजिएगा। आप कंटिन्यूसली, आपको अगर डायबिटीज़ स्पेशली है तो मैं आपके लिए स्पेशली रिकमेंड करूँगा, आप 21 डेज़ से लेकर 30 डेज़ के लिए आप नीम के पत्ते खाइएगा, रेगुलरली प्राणायाम कीजिएगा। और रेगुलरली प्राणायाम करने के बाद आप अपना जो डाइट है उसमें आप, अब अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अच्छा हुआ संध्या जी की वजह से हम लोग इस बात पर आएंगे। कोई भी डाइट अगर आप करते हो, देखिए हमारी बॉडी एक सिस्टम है। जैसे कि अगर आपको मैं कल के दिन बोलूँगा कि कल उठ के आपको 200 सूर्य नमस्कार करने हैं, तो क्या आप कर पाओगे? क्या आपके शरीर आपको सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हमारा शरीर जो काम भी वैसे ही करता है, हमारा पेट भी वैसे ही काम करता है। आप अगर कोई भी डाइट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने डाइट को और अपने पेट को शॉक नहीं देंगे। आप अपने पेट को शॉक बिल्कुल नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी चीज़ को, अब देखिए प्रेगनेंसी में मैं आपको बताता हूँ रूपन जी, आपको 2 मिनट के लिए, आप डाइट वाली चीज़ को मैं कंप्लीट करके मैं इस टॉपिक पर आता हूँ। आप अगर कोई काम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, आप कोई सडन चेंज नहीं करेंगे डाइट में। आप मत कीजिएगा डाइट में कोई सडन चेंज। आप ग्रेजुअली थोड़े थोड़े दिन में आप उसमें ऐड कीजिएगा। जैसे कि मैंने देखा, मैं बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है वो क्या करते हैं कि आपको डाइट दे देते और आपको बोलते कल ही से फॉलो कीजिए, ये टाइम पे ये खाना है। तो देखिए आपके बॉडी को शॉक लगता है ये सब चीज़ों से। अगर आपका बॉडी सिस्टम 4 बजे खाने के लिए अगर तैयार होता है, आप उसको अगले दिन से 1:30 बजे खाना शुरू करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका पेट गड़बड़ होगा। तो आपको 4 बजे का शायद से 3:30 करना होगा, 3 बजे करना होगा, फिर शायद से थोड़ा धीरे धीरे करना होगा। तो ऐसे ही आपको करना होगा कोई भी डाइट हो। आप नीम ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है। फ्रूट्स जो है वो फाइबर्स है, वो आप ऐड कर सकते हो। सुबह 2 गिलास पानी पीना है, बहुत बेसिक चीज़ें, आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल ऐड कीजिएगा आप ये चीज़ें। तो महिमा जी, आपको डाइट के बारे में बता दिया। थायराइड के लिए मैं आपको एक चीज़ बेसिक बताता हूँ। आप एक प्राणायाम है जिसे हम लोग सर पर प्राणायाम कहते हैं, जिसमें आपको ज़बान को जो है, यू हैव टू टेक योर टंग कम्प्लीटली आउट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टंग। अभी आप करके देख सकते हैं, आपको ये अभी के अभी आपको महसूस होगा कैसे करना है ये।
तो आपको क्या करना है, सांस लंबी लेनी है, टंग आउट करनी है और टंग के टिप पे कंसंट्रेट करना है और आपको ये होल्ड करना है कंफर्टेबली 10-20 सेकेंड्स के लिए। फिर टंग को अंदर लेके आपको फिर सांस छोड़नी है। अगर आप ये करोगे तो आपको थायराइड में थोड़ी बहुत राहत जो है निश्चिंत मिल जाएगी। विधि भटनागर जी, मैंने मेरा नंबर डाल दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको भेज भी दिया करूँगा अगर आपको वीडियो से सीखना है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम के लिए मैंने बता दिया अभी। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू आरती जी। संध्या जी, आप 61 ईयर ओल्ड है, हाँ आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए। रूपन कोहली जी, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आप किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो डॉक्टर ने बोला है वही आप कंसल्टेंसी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि प्राणायाम जो है ये सीखने वाली बात है। मैं आपको ये जितना भी वर्बली बताऊँगा, पर आप जब तक सीखोगे नहीं प्रॉपरली तब तक ये नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सेंसिटिव टाइम पे तो आप बिल्कुल भी रूपन जी इसका ये मत कीजिएगा, इसका सेवन मत कीजिएगा, ना ही प्राणायाम ना ही कोई भी नीम या वगैरह कुछ ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि आप बिना कंसल्टेंसी के कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। बिकॉज एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी सोल्यूशन एंड एवरीथिंग इज़ लिंक टू वन अनदर, एवरी ऑर्गन इज़ लिंक टू वन अनदर। हम लोग जब कोई केस लेते हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उसका पूरा स्टडी हमारे पास हो, उसका पूरा डेटा हमारे पास हो, उसके पास में उसको कौन सी डिजीजेस थी, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, व्हाट ऑल प्रोफेशन ही इज़ इन, व्हाट ऑल स्ट्रेस इज़ गोइंग थ्रू, व्हाट आर द चैलेंजेस इन हिज लाइफ, at what stage he is, what are complications happened, what are his strong point, what are his weak point, and according to that we suggest. So Rupam ji, I would recommend you not to practice on your own, and this recommendation is for each and every other person present in this. अगर आपका संध्या जी लास्ट ईयर हुआ था, आप ये नॉर्मल बेसिक प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत कॉशियसली होकर कीजिएगा। 1 साल हो चुका, मतलब आप काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके होंगे और अभी भी आपकी बॉडी रिकवर होना बाकी होगी, तो आप कर सकते हैं ये प्राणायाम। स्ट्रेस के लिए तो मैंने वैशाली जी आपको जैसे बताया ही है, स्ट्रेस के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। और वैशाली जी हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है, शी इज़ बीन वर्किंग विद अस सिंस वी हैव बीन सर्विंग अस सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो आई गेस वैशाली राउत मैम, you have reached to a very good level on meditation, and as I have mentioned in the previous session as well, कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं करके मेडिटेशन के लिए। मैंने आपको एक एक्टिविटी आपके लिए मैंने एक खास रखी हुई है, तो हम लोग उस दिशा में भी हम लोग बढ़ेंगे अगले सेशन में। एवरीथिंग, थैंक यू सो मच विधि भटनागर जी। आई रियली होप कि मैं आपसे इतना सहयोग मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोलूँ और हम लोग उस पर कहीं ना कहीं वीडियोज़ डालते रहेंगे, ताकि आपको ये नीतू जी, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड क्वेश्चन दैट हम लोग व्हाट कैन वी डू फॉर द एंगर मैनेज, फॉर द एंगर। तो देखिए क्रोध जो है ये आता है, देखिए एक मैं बहुत बेसिक चीज़ बोलूँगा नीतू जी, कि देखिए एंगर, वॉट एवर वी ईट, इवन देखिए हम लोग जो खाते हैं, वॉट एवर वी ईट, वी हैव अ इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ स्टाइल ओवर दैट, राइट। वी कैन बिकम थिन, वी कैन बिकम फैट, आर वे, आर स्पीच, आर हैबिट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दैट। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है नीतू जी, यू ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्पाइसेस विच यू आर यूजिंग। ओके, स्पाइसेस थोड़ा सा मिनिमम कर दीजिए। थोड़ा मीट जो है आप मीट खा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कम कीजिएगा मीट, तो उससे आपका एंगर मैनेजमेंट होगा। सेकेंडली, आप ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्राणायाम करते टाइम आप मीट वगैरह सब कुछ खा सकते हैं आपके लाइफस्टाइल में, तो ऐसे कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस नहीं है, लेकिन आप अवॉइड कीजिएगा। थर्डली, वन मोर नीतू जी आपको मैं बताऊंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन योर ओन। यू हैव योर ओन मी टाइम फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 hour, जस्ट सिट डाउन, यू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू हॉबी and you start with Nadi Shodhan Pranayam and you do meditation. Obviously you can add Surya Ved and Chandra Ved, but try to meditate more. You'll see very good result with the anger thing. Thank you so much Vidya ji for your valuable feedback. Yes, Ragini ji, I just mentioned that one specific for anger thing is your Nadi Shodhan Pranayam and then meditating for 15-20 minutes, and Shavasana for 10 minutes is a must. That will help you out for sure. And also you guys can add Surya Ved and Chandra Ved while you're for anger. Okay, I'm repeating this as a very important thing. Okay, and I want all your attention over here while you are doing Surya Ved and Chandra Ved. Right now, if you see if you have any confusion, just do Surya Ved and Chandra Ved equally. जितने बार आप सूर्य वेद करें उतने बार आप चंद्र वेद कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एंगर में प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी आप देखते हो वातावरण, अभी आप जो क्लाइमेट है
वो बहुत ठंड है, अभी अभी बहुत सूदिंग क्लाइमेट है, तो इसमें आप ज़्यादा चंद्रभेद नहीं कर सकते। पर अगर थोड़ा सा वार्म हो जाता है क्लाइमेट, तो रूपन जी और रागिनी जी, आप नीतू जी सॉरी, आप इसमें 2 सेट जो है, 2 से 3 सेट चंद्रभेद के सूर्यभेद से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, एंगर में आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच संध्या जी, आई रियली विश गॉड ब्लेस अस ऑल। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिविटी। देखिए, मैं संध्या जी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है पॉजिटिविटी के ऊपर, और बीइंग पॉजिटिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड, ही इज़ अ होम्योपैथ, एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट रोल डज स्ट्रेस प्ले इन एनी डिजीजेज, तो ही सेड none of the medicines, none of any consultation, nothing will work if you are not willing to fight it. देखिए, आप कोई भी डिजीज़ होती है, आपको अगर कोई भी दवाई देते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या कहता है कि विल सी, हम लोग देखते हैं कि कौन सी ये दवाई कैसे असर करती है। यानी कि दवाई आपको हेल्प करती है, आप हील तो अपने आप को ही कर रहे हो, आपको दवाई हील नहीं कर रही है, दवाई आपको मदद कर रही है हील करने के लिए। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ और मुझे मेरे पिताजी का सपोर्ट है, चला मैं रहा हूँ, मुझे क्लाइंट्स का सपोर्ट है, मेरे पिताजी का, लेकिन चलाना तो मुझे ही है। घोड़े को तालाब तक मैं लेके जा सकता, लेकिन पीने का काम घोड़े को खुद ही करना होगा। तो बीइंग पॉजिटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू गाइस कैन रियली डू दिस। सात्विक इज़ गुड फॉर ऑल, या सात्विक फूड इज़ गुड फॉर ऑल। और हमारे जो प्राचीन थे उसमें मांसाहार को भी सेवन करने बोला, लेकिन दैट वाज बिफोर, सो दैट वी कुड हैव तामसिक प्रवृत्ति, सो दैट वी कुड एक्चुअली गो फॉर वॉर। मतलब कृष्ण में, गीता ने सब कुछ कहा गया है कि आपको तामसिक और सात्विक की कब कहाँ ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, वी ऑल रीड। और सात्विक रहने से ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश लगता है, आप यू कैन थिंक मोर प्रॉपरली, यू कैन थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग खाते हैं मीट वो लोग प्राणायाम नहीं कर सकते या उनको ही हमेशा एंगर प्रॉब्लम होती है। जो लोग सात्विक हैं उनको भी एंगर प्रॉब्लम हो सकती है, बट खाना ऑब्वियसली नेसेसरी है। थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच महिमा जी। अलका जी हाय, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट मेंशन इट। थैंक यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू नीतू पंत। If we have any more queries we can go forward, otherwise we can just stop it. We'll just recap it. We recap all the pranayams for once, and I'll just mention my number once again. You can contact me. We take online classes, we take offline classes, we take personal classes. The Samved Trust has worked with a lot of prominent celebrities like Manisha Koirala, Sangram Singh. Then obviously the Samved Trust is owned by Yog Guru Shambhu Sharan, and I work under him as a health expert, as a pranayam teacher. So we have served a lot of prominent celebrities. We have worked with IIT Bombay. We have also worked with Ministry of Commerce. We have worked with Mumbai Police. We have worked with the IG of Konkan Zone. So yeah, we also organize events for corporates. We take events for we can take webinars as well. We take school events. We take college events. So we can always contact sir for anything. And वेरी नाइस। इफ़ यू आर ए टीचर, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं हमें कभी इन्वाइट कीजिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल संध्या मैम। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप इट हेल्प यू आउट। सो द जस्ट अ रिकैप, द वेरी फर्स्ट इज़ नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत बेसिकली करना है। इसमें आपको इनहेल एक्सेल करना है 21 टाइम्स लाइक दिस। ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। इसके बाद हम लोग मुड़ेंगे सूर्यभेद प्राणायाम के ऊपर। सूर्यभेद जो है राइट से हम लोग शुरुआत करेंगे, होल्ड करेंगे एट द लेफ्ट से छोड़ेंगे, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे इनिशियली, एंड देन वील लीव इट फ्रॉम लेफ्ट साइड। दिस वे वी विल डू इट इनिशियली 6 बार। उसके बाद हम लोग 12 बार करेंगे। उसके बाद ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे लेफ्ट से शुरुआत करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे। होल्डिंग जो है 10 सेकेंड्स के लिए करेंगे। दिस वे विल कंप्लीट द सूर्यभेद एंड चंद्रभेद, नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड सर्प प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम जो है मैंने आपको बता दिया था। जिन लोगों को नहीं समझा है प्लावनी प्राणायाम, प्लीज़ डोंट एक्सपेरिमेंट। अभी भी मैं वापस सारी चीज़ें रिपीट करूँगा। आपका स्टमक जो है, आपका पेट जो है 3 घंटा खाली होना चाहिए कोई भी प्राणायाम करने के पहले। सेकेंडली, आप जो है डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर नहीं बैठेंगे। अगर आप सोफे पर बैठ रहे हैं तो भी आप मैट या क्लॉथ या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अर्थ की ग्राउंडिंग आपको नहीं लगनी चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू ऑल दिस, यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। द पीपल हु हैव Sandhya ma'am, you have a query that is this Anulom Vilom? No, this is not Anulom Vilom, because Anulom Vilom is what? Basically, we don't practice Anulom Vilom. This comes under Sabij Vidya.
तो अनुलोम विलोम में स्विच करना होता है। इसमें आपको सूर्य बेद जो है वो कंटिन्यूस 10 टाइम्स करना है और आपको होल्डिंग जो है जिसे हम लोग कुंभक कहते हैं उस अवस्था में आपको ज़्यादा समय तक रहना है। You have to stay in that kumbhak for a longer period of time. That is why I differentiate between Anulom Kumbhak and Anulom Vilom are a part of basic pranayam. This doesn't come under Sabich Vidyas. So this is not Anulom Vilom. So I'll repeat once again. If you actually do this pranayam continuously, how it would look like. आई डिड इट ट्राइस। सूर्य बेद के बाद आप मेक श्योर कीजिएगा आप चंद्र बेद प्राणायाम भी कर लीजिएगा। आई होप मुझे आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं मेरा नंबर फिर से मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई ज्वाइन करना हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पर्सनल क्लास चाहिए तो कोई कर सकते हैं। आपको कोई एलिमेंट है तो अगर उसके ऊपर आपको कंसल्टेंसी और आपके ऊपर आपको पर्सनलाइज सर्विस है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई नहीं, आपको सिर्फ बात करना है, अगर आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस से होता हो या आपको बस बातें करनी है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे मेरे नंबर पर। आप इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, ऑब्वियस सी बात है, और आपको कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। वी कैन ऑलवेज वर्क, वी विल फॉर्म अ वेरी बेटर कम्युनिटी। हम समवेत ट्रस्ट में योग गुरु शंभू शरण जी की स्थापना की गई थी इस ट्रस्ट की, और वही इसके एमडी और मैनेजिंग ट्रस्टी है। उनका विजन ही है कि घर घर में ये विद्या पहुँचे, और नारी से बेहतर और कौन सा मीडियम हो सकता है, क्योंकि अगर एक घर पे अगर एक नारी अगर स्वस्थ हो जाए तो वो पूरे घर को स्वस्थ कर सकती है। फीमेल्स हैव बीन वेरी पावरफुल सिंस एजेस। हमारे देख लग सकते हैं आप सरस्वती माता जिनके पास विद्या का ज्ञान है, लक्ष्मी माता जिनके पास धन है, और दुर्गा माता जिनके पास पावर है। तो सारी चीज़ें औरतों के पास है। दे आर वे मोर पावरफुल देन एनी मैन कैन एवर बी। जस्ट दैट दे शुड रियलाइज इट। ऑल्सो वन ऑफ द बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संध्या जी, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरैक्ट करके। मैं मुंबई से ही हूँ, और विद्या जी ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये सारी गुरु जी के अचीवमेंट्स है। मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, मामूली सा आम सा, मेरी तो कोई अचीवमेंट है नहीं ऐसी। तो थैंक यू सो मच। फिर भी ये गुरु जी का ही ज्ञान है, गुरु जी की विद्या, गुरुदेव का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और मैं मुंबई से। आई विल चेक फॉर बिगिनिंग। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच रागिनी जी। I really hope you guys follow all this. If anyone wants to ask any question who have just joined it, I can see that few people have joined back. If you want to ask anything, you can ask. अगर गलती से मुझसे कोई चीज़ छूट चुकी होगी तो प्लीज़ आप पूछिएगा, मैं आपको एड्रेस कर दूँगा फिर से। और आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पर्सनली नहीं बतानी हो तब भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, तो अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फॉलो करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इन सारी चीज़ों से। एंड थैंक यू सो मच वैशाली जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमकी दत्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अगर और किसी को कोई चीज़ बोलनी है तो प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, और इट इज़ रिलेटेड टू आयुर्वेद, बेसिक आयुर्वेद, यू कैन आस्क एनीथिंग। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप उठ के 3 गिलास पानी पीते हैं सबसे पहले उठ के, गर्मी के मौसम में आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, और अगर ठंडी का मौसम है तो हल्का सा गर्म पानी आप पी सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर व्हाट यू से। यू कैन ऐड दिस टू योर डाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक नो वन हैज़ एनी मोर क्वेरीज एंड आई शैल finish this live webinar, and thank you so much for listening to me. I really hope it helps you to have your good impact on your health. Thank you so much. Pradna ji, I can redo Chandra Ved as well. It is same as Surya Ved. You just have to start from the left side and end with the right side. Pradna ji, if you want, I can forward you a link or whatever it is, or I can take a. Also, if anyone wants to have a, if anyone wants to have a demo session with me, you are always welcome. It is free of cost. We are providing in this Corona pandemic, we are free of cost. You can join to that as well. If anyone wants to ask anything else,
हाँ, आपके पैरों पे जो सुन्न हो रहे हैं वो वेन्स की प्रॉब्लम है संध्या जी। आप थोड़े टाइम के लिए प्राणायाम कीजिएगा। आपको थोड़े पर्सनलाइज प्राणायाम की ज़रूरत है वैसे तो, बट आप अगर आपको नहीं करना है तो फिर भी आप बेसिक प्राणायाम जो मैंने अभी आज आपको बताया वो आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आरती जी। अलका जी, I'll share you my Instagram. You stay tuned. I'll share you my this thing. My if you Google if you put this on Facebook, you just follow me. I'll be sharing it on YouTube because अभी तक हम लोगों ने YouTube के लिए मैंने अपना पर्सनल चैनल खोला नहीं है। तो अलका जी, इफ़ यू कुड फॉलो मी ऑन rahul.gahak.12 on Facebook, or you can add me. I'll be sharing my YouTube link soon. You can follow me through that channel. I guess that's it then. Thank you so much everyone, and I'm going to be 30 seconds. I'm be waiting for 30 seconds more, 30 to 1 minute more. If anyone wants to ask anything, this is the final call. I really hope you guys come up if you want to ask anything. I'm always there to help you guys. Aarti ji, you just follow me on my Facebook channel or Facebook, or you can also follow me on my Instagram. My Instagram is Rahul Ghag. Rahul. I have mentioned my Instagram as well. You can follow me there as well. Wherever you want, you can follow me. I'll ping you. I'll help you guys since I don't have that much of. थैंक यू सो मच संध्या जी। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी होगी तो। सो आई जस्ट वेट फॉर 1 minute and then I'll suspend the call. Okay, if you want to ask, you can ask in this 1 minute. And I also I have mentioned the Facebook ID Aarti ji. It is rahul.ghag.12. You can just see that Unimo Universe of Mon has mentioned comment over above. You can just follow that. Or else I'm really thankful to Mrunmay Mahadik. I'm really thankful to Mrunmay Mahadik, and also I'm thankful to Unimo Universe of Mons for providing me the opportunity to get connected to you guys. I really hope this session was very fruitful. Your feedback on my post would really be, very. Your feedback on my post will be very motivating for me and to Unimo as well. And stay tuned for more videos at Unimo. Thank you so much. And Mrunmay, I would really request if you could, help these people find my Facebook ID and my Instagram ID. That would be a great help. And I'm really thankful to you because you have provided your most help regarding this. Thank you so much. I'm finishing my video now. Thank you so much, Mrunmay. Thank you so much, Alka ji. Bye. See you. Take care. Stay healthy. Stay fit.